ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਲ ਬੋਧਨੀ ਟੀਕਾ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਰਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸਾ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ महंत जी ने, महंत जी कहते अब 4 पौड़ियाँ मह नाम के मनन करने का महात्म कहते हैं। मन्ने की गात कही ना जाए, नाम दे मनन करन वालियां दी गत कहीए फल दी प्राप्ति बाणी करके नहीं कही जाती। भाव ये जो निरत सै ब्रह्म सुख की प्राप्ति हुंदी है, सो सुख किसी उपमा दृष्टांत के योग नहीं है। इस कारण ते अकह वस्तु है। जे को कह पिछे पछुताए, ऐसी अकथ वस्तु नू जो कोई हठ करके किसी उपमा दृष्टांत से कहेगा, सो पिछों पछुता ही करेगा। भाव जैसे कोई कठिन कर्म नू करने लगे और उस पासों काम सिद्ध ना हो सके ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਾਗਦ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਮੰਨਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ का सतसंगी पुरख एकांत बैठ कर विचार कहिए अंतर्मुख वृत्ति करके चिंतन करते हैं। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा अविनाशी सुख देने वाला निरंजन भाव शुद्ध परमात्मा का नाम गुरु द्वारा जिसनों प्राप्त होवे। जे को मन जाने मन कोय, पुनः जो कोई अधिकारी मन जाने मनन कर जाने, फिर उस अधिकारी नू मन कोय कहिए मनन करने जोग कौन पदार्थ रहया, किंतु कोई नहीं। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, नाम दे मनन कर मन विच सुरत कहिए सष्टू रत्ती भाव के प्रीति अर बुद्ध कहिए परमेश्वर दी ज्ञात हुंदी है। मन्नै सगल भवन की सुध, मनन करके सब भवनां दी 14 लोकां दी सुद्धि पवित्रता ही प्राप्त हुंदी है। अथवा संपूर्ण लोकां दी मिथ्या रूप करके शुद्ध कहिए ज्ञात हुंदी है। मन्नै मोह चोटा ना खाए, ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਉੱਪਰ, ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਉੱਪਰ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਉੱਪਰ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਥਵਾ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, नाम दे मनन कर शरीर त्याग समय जमा के साथ नहीं जाता। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा जो ऐसा अविनाशी सुख देने वाला निरंजन शुद्ध परमात्मा का नाम गुरु द्वारा जिसनों प्राप्त होवे। जे को मन जाने मन कोय, पुनः जो कोई अधिकारी मन जाने भाव मनन कर जाना, फिर उस अधिकारी नू मन कोय कहिए मनन करने जो कौन पदार्थ रहा है,
किंतु कोई नहीं। मन्नै मार्ग ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੰਨਣ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਰਸਤਿਆਂ ਮਹਿ ਠਾਕ ਕਹੀਏ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨਣ ਕਰਨੇ ਕਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਸੱਚ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਮੰਨਣ ਕਰਨੇ ਕਰ ਮਗ ਕਹੀਏ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਕੇ ਪੰਥ ਕਹੀਏ ਰਸਤੇ ਮਹਿ ਚੱਲਦਾ ਅਥਵਾ ਮਗਨ ਕਹੀਏ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਤਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ऐसा अविनाशी सुख देने वाला निरंजन भाव शुद्ध परमात्मा का नाम गुरु द्वारा जिसनों प्राप्त होवे। पुनः जो कोई अधिकारी मन जाने मन्नण कर जाने फिर उस अधिकारी नूं मन कोय कहिए। मन्नण करने जो कौन पदार्थ रहा है किंतु कोई नहीं। मन्नै पावह मोख द्वार। ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰਾਦਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਆਸਰੇ ਸਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਕਰ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੀ ਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨਾ ਭਿਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰ ਭਿਖ ਕਹੀਏ ਦੀਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਤਰ ਹੋ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਅਥਵਾ ਭਿਖ ਕਹੀਏ ਜੁਨੀਆਂ ਮਹਿ ਨਹੀਂ ਭਰਮਦਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ऐसा अविनाशी सुख देने वाला निरंजन शुद्ध परमात्मा का नाम गुरु द्वारा जिसनों प्राप्त होवे। पुनः जो कोई अधिकारी मन जाने मनन कर जाने फिर उस अधिकारी नूं मन कोय कहिए। मनन करने जो कौन पदार्थ रहा है कोई नहीं। पंच परवान पंच प्रधान। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਕੀ ਮੁਰਾਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ में सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ऐसा पुरख संसार मह पंच कहिए मुखी संत मुरातबे ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋकर इस लोक मह प्रवान कहिए प्रमाणिक भाव मानने योग है। पुनः सोई पंच भाव संत पाताल लोक मह प्रधान कहिए पूजनीक मुखी पूजनीक है। पंचे पावह दरगह मान। पंच भाव संत ही धर्म राजा की दरगाह मेहमान आदिक पावदे हैं। पंचे सोह दर राजान। संत ही राजान भाव भगवंत के दर में शोभते हैं अथवा संत ही साम संतोख दी साधना संपत्ति के धारने में परवान कहिए पुरखार्थ वाले हैं। पुनः पंच काम आदकों के जीतने में प्रधान कहिए सूरवीर हैं। सोई पंचे संत पावदे हैं सोई पंचे संत पावदे हैं। गह कहिए हृदय रूपी जगह दे अंदर दरमे ने अंदर मान कहिए परमेश्वर दे ज्ञान नूं। तिना पंचे संतां के दर हृदय में राजान भाव महाराज परमात्मा देव सुभायमान हो रहा है।
पंचा का गुर एक ध्यान। पंचा का गुर एक ध्यान, तिना संतां का एक गुर, पूज परमात्मा विखे ही ध्यान है। आगे प्रश्न कर दे, जिस परमात्मा का संत जन ध्यान करते हैं उस भगवंत दे करतबां का निर्णय करके आप कहो जी। उत्तर में कहते, जे को कह कर विचार, करते का करण नाही सुमार। हे सिद्धो, जो कोई पुरख परमेश्वर दे कर्मां दा विचार भाव निर्णय करके कहे तां कहिया नहीं जांदा, क्योंकि करते परमेश्वर दे करने कहिए करतवां दा सुमार भाव हिसाब नहीं है। प्रश्न होया, शास्त्र पुराना में हिसाब तां लिखे हुए हैं जो 49 करोड़ पृथ्वी बैल ने चक्की हुई है। तो उत्तर में कहते, ये प्रसिद्ध बैल गऊ का जाया पृथ्वी नूं नहीं चुक सकदा। वो होर ही बैल है जिसनूं शास्त्रकार कहते हैं। प्रश्न होया, वो किहड़ा बैल है और किसदा जाया होया है? उत्तर कहते हैं, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जन सूत। पृथ्वी दे चुकने वाला धर रूपी तौल कहिए बैल है, सो दया का पुत्र है और संतोख रूपी घाह नूं खांदा है। भाव संतोख करके ही धर्म पुष्ट होंदा है। जिस धर्म ने सूत कहिए संपूर्ण वर्ण आश्रम दियां मर्यादा के व्यवहार नूं स्थित कर रखिया है। जे को बुझ होवे सत्यार, तवला उपर केता पार। हे सिद्धो, जो कोई हठ करके इसे प्रसिद्ध बैल नूं ही पृथ्वी दे चुकण वाला बुझे कहिए जान करके साडे पासों सचियार होया चाहे, तां असीं उस नूं ये पुछांगे, जो इस तेरे मन्ने होए धौल बैल उपर कितना भार है? जेकर वो कहेगा कि सारी पृथ्वी का भार है, तां असीं अगों पुछांगे कि धरती होर परै होर होर, तिस ते पार तला कवन जोर। इस धरती दे परे होर धरती है, तिस दे परे होर, तिस दे परे होर। जेकर वो भी होर होर बैल कहंदा जावे तां प्रसंग कोई ना सिद्ध होवेगा। जद असीं फेर ये पुछांगे कि तिस अंत दी धरती ते धरती दे भार हेठां किसदा जोर है, तां फिर इस प्रश्न का उत्तर देना वादी नूं कठिन होवेगा। तां तो पहला ही धर्म रूपी बैल दे आसरे धरती का स्थित होना मान लेना चाहिए। इतने प्रसंग कर ये वार्ता सिद्ध हो गई है, सिद्ध हो गई कि परमेश्वर दे करतबां दा और परमेश्वर दा अंत किसे नहीं पाया है। सोई पुनः कहते हैं, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुढ़ी कलाम। तिस परमात्मा ने अनेक जातियां वाले, अनेक रंगां वाले, अनेक नावां वाले जीव रचे हैं। तिन्हां सबना के मस्तक पर परमेश्वरी दे हुक्म रूपी कलम बुढ़ी कहिए वगी। तिस कर शुभ ते अशुभ कर्मां अनुसार लेख लिखिया गया। एह लेखा लिख जाने कोय, लेखा लिखिया केता होए। ये परमेश्वर दे रचे होए जीवां दा और तिन्हां दे कर्मां दा लेखा जो कोई लिख सके, लिख करके जाने, तां उस नूं ये पुछिए कि तेरा लेखा लिखिया होया कितना होया है। केता ताण सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। और परमेश्वर दा ताण भाव बल कितना है, और उसका सवाले हो कहिए सुंदर रूप कितना है, और दात कितनी है। हे सिद्धो, इतना इन्हां गल्लां दा उत्तर वो वादी नहीं कह सकेगा, क्योंकि ऐसा कौन है जो कूत कहिए कोता करके अर्थात निजम करके परमेश्वर दे वल रूप आदिकां नूं जान सके।
किंतु कोई नहीं जान सकता। प्रश्न होया, ऐसे बेअंत जीवां के रचने दा परमेश्वर ने भी कोई बड़ा भारी यत्न किया होवेगा? उत्तर में कहते, कीता बसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ। परमात्मा ने एक ही कवाओ कहिए वचन करके, भाव एक से अनेक होने का संकल्प करके सारे जगत का पसाव भाव पसारा किया है। तिस एक संकल्प ते लखां ही दरियाओ कहिए ब्रह्मांड होए हैं। कुदरत का बण कहा विचार, वार्या न जावा एक बार, वार्या न जावा एक बार। हे सिद्धो, मैं तिस परमात्मा दी कौन शक्ति नूं विचार करके कहाँ, तां ते उस बेअंत शक्तिवान तो एक बारी भी मैं कुर्बान नहीं हो सकदा। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। उस भगवंत के आगे तुसी भी यही बेनती करो कि हे अकाल पुरख, जो कार तैसी हच्छी तैनू हच्छी लगे सोई सानू भली है। तू निराकार स्वरूप सदा ही सलामत स्थित है। आगे प्रश्न होया, हे गुरु, बेअंत शक्तिवान परमेश्वर ने जो एक संकल्प मात्र से जगत का पसारा किया है, तिस उत्तम परमात्मा जीव कितने के हैं और नीच पापी जीव कितने के हैं? उत्तर कहते, असंख्य जप असंख्य पाओ, असंख्य पूजा असंख्य तप ताओ। हे सिद्धो, परमेश्वर दी सृष्टि विच धर्मात्मा जीवां दी गिनती नहीं है। असंख्य कहिए बेअंत ही जप करने वाले हैं, असंख्य ही भाव प्रेम करने वाले हैं, असंख्य ही मूर्तियां की पूजा करने वाले हैं और बेअंत ही तपां दे तापण वाले हैं। असंख्य ग्रंथ मुख्य वेद पाठ, असंख्य जोग मन रह उदास। बेअंत ही ग्रंथां दे पढ़ने वाले हैं, बेअंत ही मुख कहिए कंठे ही वेदां दा पाठ करने वाले हैं, अणगिणत ही जोग साधना करते हैं। अनेक महात्मा मन विखे संसार ते उदासीन रहंदे हैं। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार। अनेक ही परमेश्वर दे भगत हैं, अनेक ही गुण उपकारां दे करने वाले हैं, अनेक ही गुणवान हैं, अनेक ही सत असत का विचार करने वाले हैं, अनेक ही सती सतवक्ता हैं, अनेक ही दान करने वाले दातार हैं। असंख्य सूर मोह पख सार, असंख्य मौन लिवलाय तार। अनेक ही सूर में हैं जो मुँह सामने सार फौलादी शस्त्रां नूं खांदे हैं, अथवा सूर कहिए तत्ववेता ज्ञानी हैं जो सार की न्यायी कठिन मोह अज्ञान नूं भखण कर जाते हैं। और बेअंत ही मौनता के धारने वाले हैं। अनेक ही तार तेल धारा की न्यायी लिव कहिए बिरती नूं लगाए रखते हैं। कुदरत कवण कहा विचार, वार्या न जावा एक बार। हे सिद्धो, मैं तिस परमात्मा दी कौन शक्ति नूं विचार करके कहाँ, तां ते उस बेअंत शक्तिवान तो एक बारी भी मैं कुर्बान नहीं हो सकदा। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। उस भगवंत के आगे तुसी भी यही बेनती करो कि हे अकाल पुरख, जो कार तैनू हच्छी लगे सोई सानू भली है। तू निराकार स्वरूप सदा ही सलामत भाव स्थित है। असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हरामखोर। हे सिद्धो, जैसे परमात्मा पुरख बेअंत कहे हैं, तैसे नीच
जैसे धर्मात्मा पुरख बेअंत कहे हैं, तैसे नीच पापी जीव भी बेअंत ही हैं। सो सुनो, अनगिनत ही मूर्ख कहिए विचार ते रहत हैं। असंख्य मूर्ख अनगिनत ही मूर्ख कहिए विचार ते रहत हैं, और बेअंत ही अंध मूर्ख हैं, जो महात्मा के उपदेश को भी नहीं मानते। अनेक ही घोर मूर्ख हैं, जो वेद शास्त्र महात्मा के उपदेश में उल्टा ही सी मस्करी करते हैं। अनेक ही चोरियां करने वाले चोर हैं। अनेक ही हरामखोर कहिए पराया हक खाने वाले हैं, अथवा घोर कहिए खाधे होए नूं हराम करते हैं, भाव खा के मुकर जाते हैं। ऐसे किरत घन भी अनेक ही हैं। असंख्य अमर कर जाहे जोर, असंख्य गल वड हत्या कमाहे। अनेक ही अमर कहिए देवतियां उपर जोर करी जाते हैं, रावण आदिक, अथवा जोर दा अमर कहिए हुक्म करी जाते हैं। अनेक ही धन पदार्थ के लोभ कर जीवां के गले कट्टण आदिक हत्या पाप कमाते हैं। असंख्य पापी पाप कर जाहे, असंख्य कूड़ियार कूड़े फिराहे। अनेक ही पापी जीव ठगी धोखा आदिक पापां नूं करी जाते हैं। अनेक ही झूठे जीव झूठ ही बोलते फिरते हैं। असंख्य मलेच्छ मल भख खाहे, असंख्य निंदक सिर करह भार। अनेक ही अपवित्र जीव मल मूत्र नूं भख समझ के खांदे हैं। घोरी आदिक अथवा मल के भखण करने वाले जीवां नूं खांदे हैं। अनेक ही निंदक हैं, जो निंदा करन रूपी भार पाप अपने सिर पर धारण करते हैं। नानक नीच कह विचार, गुरु नानक जी कहें, हे सिद्धो, इत्यादिक नीच पुरखों का विचार निड़ना कहया है। वार्या न जावा एक बार, जो तुध भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार। हे सिद्धो, मैं तिस परमात्मा दी कौन शक्ति नूं विचार करके कहाँ, तां ते उस बेअंत शक्तिवान को तो एक बार भी मैं वारिया कुर्बान नहीं हो सकता। इस एक बारी भी मैं कुर्बान नहीं हो सकता। उस भगवंत के आगे तुसीं भी यही बेनती करो कि हे अकाल पुरख, जो कार तैनूं अच्छी लगे सोई सानू भली है। तू निराकार स्वरूप सदा सलामत स्थित है। असंख्य नाव असंख्य थाव, असंख्य नाव असंख्य थाव। अगम अगम असंख्य लो, असंख्य कह सिर पार होए। आगे प्रश्न किया, पिछे आपने कहा है कि परमात्मा का नाम ओंकार है, उसके बल करके असीं इत्थे पहुँचे हाँ। सो परमात्मा का ओंकार ही एक नाम है, अथवा होर भी कोई नाम है? और उसके स्थान कितने गहन? तो इस पौड़ी में उच्चारण करते हैं, राम कृष्ण गोविंद माधव इत्यादिक अनेक ही परमात्मा के नाम हैं, और अनेक ही साध संगत रूपी निवास के स्थान हैं, और अनेक ही बैकुंठ आदिक लोक कहिए लोक हैं। सो मंदभागी पुरखां नूं साध संगत रूपी स्थान अगम कहिए प्राप्त होने योग नहीं है, और बैकुंठ आदिक लोक भी अगम है, और अनेक ही तपी लोक परमेश्वर दे नाम नूं सिर भार कहिए सिर परने उल्टे हो के कहते हैं। आगे प्रश्न होया
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਦ ਇਤਨਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹਤੇ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਹੇ ਸਿੱਧੋ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੁਰੋਂ ਮਸਤਕ ਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਹੀਏ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਖਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਗੀਤ ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਹ ਕਹੀਏ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਨ੍ਹਾ ਸਿਰ ਕਹੀਏ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸੰਜੋਗ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੱਖਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। आगे प्रश्न कर दे, जीवा के मस्तक पर ऐसे भिन्न भिन्न लेख दे अक्षर जिसने लिखे हैं, उसके मस्तक पर भी किसी ने लेख के किसने लिखे हैं, उसके मस्तक पर किसने लिखे हैं। उत्तर कहते, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फरमाए तिव तिव पाहे। जिस कर्म फल प्रदाता भगवंत ने जीवा के मस्तक पर ये अक्षर लिखे, तिस दे मस्तक पर लिखण वाला कोई नहीं है। जिस तरह वो परमेश्वर फरमे हुक्म करदा है, फरमाए भाव हुक्म करदा है, तैसे व्यवहार विच ये जीव पैंदे हैं अथवा सुख दुख नूं पाउंदे हैं। जेता कीता तेता नाव, विण नावै नाही को थाओ। जितना ये जगत विस्तार परमेश्वर ने कीता है, तितना सब नाम कहिए नाम मात्र मिथ्या ही है। बिना परमेश्वर दे नाम तो इस मिथ्या जगत विच जीव का कोई थां भाव आसरा नहीं है। भावे के नाम सिमरन दे आसरे ही जीव संसार के दुखां ते बचते हैं। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। हे सिद्धो, मैं तिस परमात्मा की कौन शक्ति नूं विचार करके कहाँ, तां ते उस बेअंत शक्तिवान तो एक वारी भी मैं कुर्बान नहीं हो सकता। उस भगवंत के आगे तुसीं भी यही बेनती करो कि हे अकाल पुरख, जो कार तैनूं हच्छी लगे सोई सानू भली है। तू निराकार स्वरूप सदा ही सलामत भाव स्थित है। भरीय हथ पैर तन देह, पानी धोता उत्तर सोखेह। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईया ओह धोए। आगे सिद्धों प्रश्न किया, हे गुरु, बुद्धि की मलिनता कैसे दूर होवे। तो इस पौड़ी में उच्चारण करते हैं, जैसे हथ और पैर पुनः तन कहिए नाले देह भी जद मिट्टी नाल भरी जाती है, तो पानी नाल धोत्या खे मिट्टी उतर जाती है। दूसरा दृष्टांत कहते, जैसे मूत्र नाल कपड़ा पलीती कहिए अपवित्र हो जावे, तो साबुन लाए कर वो कपड़ा धोए लईदा है। भरीए मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। तैसे ही पापा के साथ बुद्धि भरी हुई है, मैली हो रही है, और बुद्धि परमेश्वर दे नाम के रंग कहिए प्रेम साथ धोपै शुद्ध पवित्र होंदी है।
बुद्धि परमेश्वर के नाम के रंग कहिए प्रेम साथ धुप्पै शुद्ध पवित्र हुंदी है। पुन्नी पापी आखण नाहे, परमेश्वर दे नाम विखे प्रेम करने कर इतने एक पापी जीव पुन्नी पवित्र हो गए हैं जो आखण विच नहीं आउंदे। भाव ये जो अगिणत ही अजामल गणका सरीखे पापी नाम के प्रभाव कर मुक्त हो गए हैं। आगे प्रश्न किया, कर्मवादी लोग कर्मा कर ही मुक्ति मानते हैं, आप जी कहिए। उत्तर में कहते, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। कर कहिए हत्थां करके पुनः कर कहिए, कीते जो करना कहिए कर्म। कर कहिए हत्थां करके पुनः कर कहिए, कीते जो करना कहिए कर्म। तिन्हां दे संस्कारां नूं हिरदे रूपी कागज पर लिख कर परलोक मह लै जांदे हैं। तिस अपने धर्म अधर्म रूपी बीज का फल आप ही खाहो कहिए सुख दुख भोगते हैं। गुरु नानक जी कहें, हुक्मी परमेश्वर दे हुक्म कर अपने कर्मां दे फल सुख दुख भोगने निमित्त इस संसार में आवहो जाहो कहिए जन्म दे मरदे हैं, कदाचित मुक्त नहीं हुंदे। पुनः ये कर्म अभिमान मात्र ते नष्ट हो जाते हैं। सोई कहते हैं, तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिल का मान। तीर्थ करने और तप करने और दुखी जीवां पर दया करनी और दत्त कहिए देना करे दान, दान दा इन्हां सबना कर्मां नूं करके जो कोई पुरख मान कहिए अभिमान हंकार नूं हृदय विच पावंदा है, ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਿਲਕਾ ਕਹੀਏ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਸ਼ਫਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਨः ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਹੀਏ मन विचार अभ्यास किया है, तिन्हां नूं भाव कहिए ज्ञान प्राप्त होया है। तिस ज्ञान रूपी पवित्रत तीर्थ मह मल के नहावंदे हैं। भावे जो वासना रूपी मैल नूं दूर करते हैं। तब अंतर कहिए आत्मा परमात्मा विखे जो अंतरा भेद है, सो गत कहिए नष्ट हो जाता है। तब वो प्रेमी जन्म मरण रूप संसार ते मुक्त हो जाते हैं। आगे प्रश्न करते, जैसे तपदान आदिकां दे करने कर अभिमान हो जाता, तैसे ज्ञान दे प्राप्त होया भी अभिमान हो जाएगा। उत्तर कहते, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए। हे सिद्धो, परमेश्वर दे प्यारे संतां दे ज्ञान आदिक गुणां नूं पाए कर परमेश्वर के आगे यही बेनती करते हैं कि हे अकाल पुरख, यह विवेक आदिक सब गुण तेरे ही दिते हुए हैं। मैं अपने बल करके कोई भी गुण नहीं धारण किया, तां ते किरपा करके ज्ञान आदिकां नूं दृढ़ रखण वाली अपनी प्रेमा भगती देवो, जिस कारण ते तेरे कृपा रूप गुण कहिए उपकार कीते थों बिना ज्ञान नूं सनिग्ध करन वाली तेरी भगती नहीं प्राप्त होंदी। आगे प्रश्न हुआ, परमात्मा ने किस क्रम वजह नाल जगत नूं रचिया है? तो उत्तर में कहते हैं, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। स्वस्थ कहिए कल्याण स्वरूप परमात्मा की वाणी कहिए अनेक रूप होने की इच्छा हुई। आथ कहिए माया है,
तिस माया ते गुण भेद कर बरमाओ कहिए बर्मा विष्णु ते शिव जगत के उत्पत पालन संहार करन वाले हुए हैं। तीनों ते आगे नाना प्रकार की सृष्टि हुई है। और सो परमात्मा सत स्वरूप है और सुहान कहिए चेतन रूप सुंदर है और सदा मन चाव कहिए आनंद स्वरूप है। अब सिद्धां दे प्रश्नां दा गुरु जी अनुवाद करते हैं। कवन सो वेला वक्त कवन थित कवन वार कवन से रुत्ती माह कवन से रुत्ती माह कवन जित हो आकार। हे अंगद देव तां फिर सिद्धां पुछया कि जित कहिए जिस समय माया द्वारा परमात्मा ने चराचर रूप जगत का आकार होया है सो वेला कौन सी और मुसलमाना के मत में कौन वक्त सी और केड़ी थित सी और केड़ा वार सी अते रुत कौन सी ते महीना केड़ा सी। अब गुरु जी इन्हां प्रश्नां दा उत्तर देंदे हैं। वेल न पाइया पंडिती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान। थितवार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई। तां अगों असां आख्या हे सिद्धो पंडितां ने भी सृष्टि की उत्पत्ति का वेला नहीं पाया। कहिए जानिया जेकर पुराणा विच लिखिया हुंदा तां जाणदे। और मुसलमाना के मत में उत्पत्ति का वक्त की ये समा काजियां ने भी नहीं पाया। जेकर कुरान में लेख लिखिया हुंदा तां काजी भी जाणदे। और जोग विद्या के साधने वाले जोगी भी उत्पत्ति समय की थितवार नूं और ना कोई रुत महीने नूं जाणदे हैं। किंतु जदों करता भगवंत सृष्टि नूं साजदा है तां उस समय नूं कोई आप ही जानदा है। उस समय नूं सोई भाव जो परमेश्वर है आप ही जानदा है। आगे प्रश्न होया तुसीं आप ही कोई उस परमेश्वर का करतब कथन करो। तो उत्तर में कहते केव सचे केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना। नानक आखन सबको आखा एक दू एक सियाणा। हे सिद्धो मैं किस प्रकार आखां उसदे उत्पत्ति कर्म नूं और कैसे सलागा करा उसदे पालन रूपी कर्म नूं और किस तरह वर्णन करा उसदे संघार कर्म नूं और किस प्रकार इदंता करके उसदे प्रभाव नूं मैं जाना। गुरु नानक ही कहें हे सिद्धो सब कोई पुरख एक थों एक चतुर बन के उस भगवंत के आखण कहिए अखाण आख्यान प्रसंगां नूं आखदे हैं परंतु इदंता करके नहीं कह सकते। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। सो साहिब परमेश्वर सब ते वड्डा है और उसकी नाई कहिए वडियाई महिमा भी सब ते वड्डी है। सब संसार का विहार जिस भगवंत का कीता होया ही हुंदा है। गुरु नानक जी कहें जो कोई प्रमादी अपने आप नूं ही करने वाला जानता है सो हंकारी अगे प्रलोक विच गया होया शोभा नहीं पावदा। अगे प्रश्न कर दे तुसां कहिया है जो परमेश्वर के करतवां नूं इदंता करके कोई नहीं कह सकता। और पुराण सिमरतियां विखे तां ऋषियां मुनियां ने निर्णय करके कहा है कि 7 पताल हैं 7 आकाश हैं अर्थात उपरले लोग हैं
ਉਹਨਾਂ में रहने वाले जीवां का भेद भी निर्णय करके कहया है। तो उत्तर में जवाब देते हैं, पाताला पाताल लख, आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहन एक बात। पतालों के परे होर लखां ही पताल हैं, अते आकाशां के परे होर लखां ही आकाश हैं। भावे कि एक ब्रह्मांड ही दृष्टि को लेकर सत पताल सत आकाश को ऋषियां ने कहे हैं, ऐसे लखा ही ब्रह्मांड हैं, ਤਾਂ कोई कैसे निर्णय कर सकता है। ऋषि मुनि भी परमेश्वर की सृष्टि दे ओढ़क कहिए अंत नूं अपने ओढ़क दे जतन नाल भाल करके थक गए, पर अंत नहीं आया। अर वेद भी यही एक बात कहते हैं, जो परमेश्वर की रचना का कोई अंत नहीं है, अथवा सब ब्रह्मांडों का ओढ़क कहिए अवधि रूप जो परमात्मा है, तिस दे ओढ़क कहिए अंत नूं भाल थके हैं ते अंत नहीं पाया है। और वेद भी यही एक बात कहते हैं, जो परमेश्वर बेअंत है। सहस 18 है कहन कतेबा, असलू एक धात। और मुसलमाना दे मत दियाँ कतेबां भी यही कहदियाँ हैं, जो 18,000 आलम है, सो असलू वास्तव ते एक माया रूपी धात की ही विचित्रता है, अथवा परमात्मा रूपी धात का ही स्वरूप है। जैसे सोने पित्तल रूपी धात के भूखण भांडे सब सोना पित्तल रूप ही हुंदे हैं, तां ते सो परमात्मा बेअंत है। लेखा होए तो लिखिए, लेखा होए विनाश। ऐसे बेअंत परमात्मा का जेकर लेखे हो सके, लेख हो सके, तां असी भी लिखिए और तुसां नूं निर्णय करके दसीए, सो तां हो नहीं सकदा। पुनः जो वस्तु लेखे विच हुंदी है, सो विनाश कहिए नाशवंत हुंदी है। और परमात्मा सदा सलामत रूप सत है। नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे सिद्धो, जो परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मादकां दा दे ब्रह्मादकां ते वड्डा कहीदा है, सो परमात्मा अपने प्रभाव नूं आप ही जानदा है। सो इत्थों तक जो जपजी साहिब दीआं पावन 22 पौड़ियां संपूर्ण हो चुकियां हन। सो पढ़दियां पासों इस टीके दे जो शैली लिखी हुई, उस दे विश्राम आदिक जां शब्दां दा उच्चारण शुद्ध नहीं होया होना। सो संगत ते सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिंद हैं, बख्श लैन। सो बाकी दियां जो पौड़ियां हैं, 23ਵੀਂ पौड़ी तो विचार अगे आपां प्रारंभ करांगे। फिर होइयां बेअंत भुलां दियां माफ़ियां बख्शो। सतगुर सच्चे पातशाह अपने समूह खालसा पंथ ते रहमत भरिया हथ रखन। समूह खालसा जगत दा आद दसम सर्ब लो इन्हां पावन ग्रंथां ते निश्चा प्रपक्क सतगुर सच्चे पातशाह आप ही कराउण ते इन्हां पावन ग्रंथां दा बोध भी समूह जगत नूं आप ही बख्शण। सो होइयां बेअंत भुलां दियां माफ़ियां किरपा करन सतगुरु नाम दान बख्श करके निहाल करन खालसा जगत नूं शास्त्र ते शस्त्र विद्या विच निपुणता बख्श के निहाल किरतार्थ करन। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खुशियां दे जगारे गजावे, फतेह पावे गुरु गोबिंद सिंह माता साहिब देवां दे मन नूं भावे निहाल हो जाए। सत श्री अकाल। गुर बरे अकाल, देग तेग फतेह। गुरु पंथ खालसे दी हर मैदान फतेह।